पॉजिटिव होम्योपैथी, हर एक छक्के के लिए 10,000 रुपए का दान हृदय फाउंडेशन के लिए, 100 हार्ट्स इनिशिएटिव। लेकिन यहाँ पर मजबूत दिल दिखाना होगा, दिलेरी से पेश आना होगा। चेन्नई के बल्लेबाजों को 15 ओवर में 91 बने हैं और अगर 10 की औसत से रन बनाएंगे तो 140 तक पहुंचेंगे, जो कि काफी नहीं है दिमाग इस पिच पे। और यही बात थी जब टॉस जीतते इतने खुश हुए थे अखिल, और अब तक जिस तरह की प्लानिंग की है वो इंप्लीमेंट की है, तो तारीफ करूंगा कि तेलुगु वॉरियर्स ने जो प्लान बनाया था उसको बखूबी उन्होंने उसको अंजाम दिया है। वाइड तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करें। अब आपको विकेट्स मिल रहे हैं, आप जेन्युइन डिलीवरी कर रहे हैं, आप वही करते चले। ये टेस्ट मैच नहीं है, T20 है। एक एक डॉट बॉल भी बहुत काम किए, एक एक सिंगल भी जाए तब भी अपने काम करेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर से गेलन के पास और जानते हैं कि डगआउट्स का क्या हाल है। और फिर से एज, With me is a very very happy man at this moment, the superstar himself, Venkatesh. जो crowd जो है बिल्कुल धमाल मचा रहा है यहाँ पे, looking at their favorite superstar. How happy are you that your team has made it all the way to the finals? I'm really very happy. He deserved to win the cup in every season, but unfortunately we could never do it. But I think this season we are going to get it, and I think we've the first 15 overs we've bowled extremely well, and we just need to tighten them a little, and I think we're going to have a fantastic match. Absolutely. Well, your boys have been doing exceptionally well throughout the tournament, and this time around they've managed to restrict the Chennai Rhinos to a very very minimum score. 15 overs, just about 96 runs. Do you think they're going to keep up to this and probably make sure they're going to win it this time? Yeah, I keep telling them go over by over, and I think each over they just contain them to a couple of just runs, and then we should they should get out by 140 or something like that. That's a big score for them. Absolutely. All right. How much are you missing playing this time around? I mean, we really miss you on the field, but are you missing being there? Well, I always miss the match because the season I was off a little because of my earlier commitments. But my heart is always there, my love is always there. And even all other seasons, I was more like a mentor for them. And I love my young boys who are doing a fantastic job. Is there one thing that you think they need to definitely work on in this particular game? No, in 2020, I think everybody has a good day and a bad day. They've done some excellent training under Venk Sarkar. I think all of them are doing a wonderful job. So you cannot blame anybody for having a bad day in T20. Yeah. Speaking of Venk Sarkar, sir, he's done such a great job with the team. Let us know your opinion on that. Well, no doubt, it's fantastic. He's a very mature man. With so much experience, and we're very fortunate to have him as our coach and mentor. And he's done an outstanding job with all the boys. All right. I'm really happy he's in. Lastly, every time your team, the Telugu Warriors, are doing something great, they're getting a wicket, we're seeing you going all out there and cheering for them in full spirit. So let's just quickly say that the Telugu Warriors, suppose if they win today, and chances are looking pretty bright for them, let us see you do a victory step. Oh, you bet. You bet. You bet. You bet I'm going to dance in the field. Oh, you people are going to watch me dancing. There's no doubt about it if you're going to win. Right. Okay? We're going to wait for that moment. Thank you so very much. It's over to commentary. शुक्रिया गेलन। जी हाँ, यहाँ पे अब रेफरल मांगा है। आदर्श को लगा कि ये बहुत ही करीबी मामला है, क्योंकि वो एकदम उन्होंने अपना हाथ उठाया, कप्तान से पूछा, अखिल से, जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, कि क्या मैं रेफरल लूं, और उनकी सलाह के बाद ये रेफरल का प्रयोग किया है। बिल्कुल सही गेंद, लीगल गेंद है, लाइन से पीछे डाली हुई, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर इम्पैक्ट कहाँ हुआ था ये देखने वाली बात है। बहुत ही छोटा कदम निकाला, पर मुझे लगा शायद ये गेंद एंगल के तहत अंदर की तरफ आ रही है, तो काफी करीबी हो सकता है। खराब शाउट नहीं है। अयाज इमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अयाज, स्वागत है आपका। एक अच्छी शाउट नजर आ रही है ये। जी हाँ अजय, ऐसा लग रहा है कि ये शायद क्लोज कॉल हो सकता है। रेफरल पे गया है मामला। ऑन फील्ड अंपायर्स इंतजार कर रहे हैं और शायद डिसीजन आ गया है कि नहीं, नॉट आउट।
काफी कुछ ड्रामा हुआ लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला उसका। पर कोई हानि नहीं है अगर आपको लगता है आउट है और आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं रेफरल का, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। एक चांस लिया। फिलहाल 16 ओवर की समाप्ति, 101 पे 4 चेन्नई राइनोस। 4 ओवर यहाँ से अब शेष है। बड़ा प्रश्न यही है कि अब कितना स्कोर बना पाएगी चेन्नई राइनोस की टीम। मुझे ऐसा लग रहा है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे आज कि कहीं ना कहीं ऐसी विकेट पे 160-70 रन बनाने बहुत आवश्यक है, तभी प्रेशर रहता है। हालांकि ये फाइनल मुकाबला है, वैसे ही अगर आप रन्स बोर्ड पे लगा लें तो अब कहीं ना कहीं दबाव रहता है जब भी आप चेस करेंगे। अभी जो औसत चल रही है 6 से ऊपर, जिससे प्रेजेंटेड स्कोर होता है मात्र 126 का, और अगर 10 रन प्रति ओवर आते हैं यहाँ से, यानी कि 4 ओवर में, तो 141 तक पहुंचते हैं। 141 हमने देखा था जब कल मुंबई हीरोज ने बनाए थे, तो वो भी काफी नहीं थे। होम सपोर्टर्स तेलुगु वॉरियर्स के और हर सीजन इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है सीसीएल की। बड़ा ग्राउंड है राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम उप्पल। ये देखिए स्टैंड पूरा भरा हुआ। एक टाइट फिनिश की अपेक्षा फैंस को, दर्शक ये भी देखना चाहते हैं, भले ही होम टीम को सपोर्ट करे लेकिन एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो। यहाँ पर अब तक मैच को जकड़ में रखा है तेलुगु वॉरियर्स ने। 101 पर 4 है, 4 ओवर्स बाकी। अब देखना यहाँ पर चेन्नई राइनोस क्या करते हैं। 4 ओवर में अजय मैं सोचता हूँ कम से कम 10-12 रन की उम्मीद रखनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। 150 के करीब स्कोर हो तो मैच बनती है। बिल्कुल सही कहा अयाज भाई आपने, क्योंकि अगर आप देखें 150 रन अगर बनते हैं, ये फाइनल मुकाबला है, हमेशा प्रेशर रहता है, दबाव रहता है जब भी आप चेज करें। और अभी भी आपके पास 6 विकेट शेष है। पृथ्वी जीवा जो कि कप्तान भी है, उनमें क्षमता है बड़े शॉट्स लगाने की। पर एक चीज है, आज दाद देनी होगी तेलुगु वॉरियर्स की, जिस अंदाज से उन्होंने गेंदबाजी की है, बहुत बढ़िया लय से की है। पहनापन नजर आया है, लाइन बढ़िया नजर आई है। रघु एक बार फिर कमाल की फॉर्म में नजर आए। नंद किशोर अभी अपना पहला ही ओवर डाल रहे हैं, उनको काफी लेट लेके आए कप्तान। ये चर्चा हम पहले भी कर रहे थे, विकल्प बहुत ज्यादा है और ये हमेशा बढ़िया रहता है किसी भी कप्तान के लिए, जब इतने आपके पास बॉलिंग रिसोर्सेज हों। अच्छा खासा स्टार वैल्यू यहाँ पर स्टेडियम में। स्लोअर वन, और इसे इंतजार किया, लेट कट किया, लेकिन उसके लिए फील्डर है वहां पर। बाउंड्री रोकने वाली फील्ड है, एक थर्ड मैन है, एक डीप पॉइंट, कवर काफी डीप, मिड ऑफ, ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग। बढ़िया लय में खेल रहे हैं जीवा, पर अब बड़े शॉट्स खेलने होंगे, बड़े शॉट्स लगाने होंगे, अन्यथा सिंगल से काम चलने वाला नहीं है। मिनिमम एक बाउंड्री तो चाहिए हर ओवर में, उससे कम तो मेरे ख्याल से ये टोटल 130 तक भी नहीं पहुंचेगा। नंद किशोर कर रहे हैं गेंदबाज, और ये आप बता दें कि आप ट्विटर हमें फॉलो कर सकते हैं @CCL। और ये चूके अखिल, थोड़ी सी बाउंस ज्यादा थी उस गेंद में। नंद किशोर ने अपना बैक बेंड किया। पहले अगर आप देखें अखिल जो कि कप्तान है, वो विकेट कीपिंग कर रहे थे, पर अब आदर्श आ चुके हैं, उन्होंने अपनी गेंदबाजी पूरी कर लिया और अब ये रोल भी निभाते हैं। और शायद फुल टाइम कीपर नहीं है, और स्पष्ट नजर आ रहा है क्योंकि कैरी बढ़िया है और बिल्कुल वेस्ट साइड पे गेंद आई थी, और यही कारण है नंद किशोर थोड़े से नाराज नजर आते हुए। एक एक रन के लिए टीम संघर्ष कर रही है, जानते एक एक रन का महत्व जब एक बड़ा मुकाबला रहता है फाइनल जैसा। अखिल अभी अब लॉन्ग ऑफ पे है, कम देखा जाता है कि कप्तान इतनी दूर जाके खड़ा हो जाए। जी हाँ, बहुत ही अचंभे की बात है। अक्सर हम देखें कैप्टन जो है क्लोजिंग फील्ड में रहेंगे और स्लॉग ओवर्स में शायद कवर या मिड ऑन मिड ऑफ, उससे ज्यादा दूर नहीं, लेकिन अखिल जो है बिल्कुल लॉन्ग ऑफ फेंस पर खड़े हुए हैं। ये है अखिल।
विकेट कीपिंग ग्लव्स निकाला है उन्होंने, अब केवल फील्डर बन के खड़े हैं। शायद तेज भागते अगर पहला रन तो दूसरे का मौका बन सकता था, लेकिन यहाँ पर काफी आराम से लिया। 17 ओवर के बाद 107 पर 4। तो यहाँ से अब 3 ओवर शेष हैं और महत्वपूर्ण बात ये है कितने रन बना पाएगी चेन्नई राइडर्स की टीम। अगर साझेदारी की बात करें, शुरू से लेके अभी तक कोई ज्यादा साझेदारी नजर नहीं आई। सबसे बढ़िया रही 37 रनों की 42 गेंदों में विक्रांत और विष्णु के बीच, और उसके बाद विक्रांत एक तरफ से रन बना रहे थे जब शांतनु भी आए, 24 रन की वो साझेदारी हुई। और अभी जो साझेदारी चल रही है पृथ्वी और जीवा के बीच में 28 रनों की 21 गेंदों में, तो पनप रही है ये साझेदारी, और इसको कन्वर्ट करना होगा एक अच्छी साझेदारी में। जैसे अयाज भाई बिल्कुल सही कह रहे थे, कम से कम 150 रन बनाने बहुत जरूरी। विकेट कीपिंग कर रहे थे अखिल और अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, तो ये दर्शाता है कि एक सही मायने में हरफन मौला खिलाड़ी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। और डेथ ओवर्स में आए हैं, आखिर के ओवर्स में, तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी अब उन पर, अखिल पर। 150 बनाने की कोशिश, अभी भी 43 रन चाहिए केवल 3 ओवर में। अजय, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कहां से आएंगे ये रन, अनलेस कुछ लॉफ्टेड स्ट्रोक्स खेलें। कोशिश यहाँ पर आक्रामक स्ट्रोक खेलने की, लेकिन अलोंग द ग्राउंड एक ही रन मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है आज कि अब दोनों ही कप्तान चाहते थे कि चेज करें, और अब दोनों ही टीमें चेज बहुत बढ़िया करती हैं, जो अभी तक नजर आए संस्करण में आई सीसीएल के, कि अब जब भी मौका मिलता है दोनों टीमों के पास बढ़िया बैटिंग लाइनअप है। यही कारण है अखिल ने आज टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। ये बढ़िया शॉट, डाइव लगाई बाउंड्री लाइन पे, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया संतुलन, तारीफ करनी होगी। ऑलराउंड क्रिकेट पर ओवर थ्रो के कारण 1 रन अधिक मिलता हुआ, और क्या बढ़िया क्रिकेट, क्या बढ़िया स्तर नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव, फील्डिंग भी बहुत अच्छी, लेकिन उसके बाद इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद एक ओवर थ्रो भी दिया तेलुगु वॉरियर्स ने। कुछ शायद ऐसा लग रहा था कि चोटिल हो गए थे अखिल। अब अपने फील्डर को समझा रहे हैं कि धीरे से फेंकें, 1 या 2 रन दे दें, बट ओवर थ्रो देके कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 22 कुकीज, और ये देखिए क्या बढ़िया माहौल। ब्रिक ब्रदर फाउंडेशन एक बहुत बढ़िया पहल, एक हर जो रन स्कोर होता है उसके लिए 1000 रुपए डोनेट करते हैं, यानी कि अभी तक जो राशि उन्होंने रेज की है 49,54,000, और हम यही बात कर रहे थे कि आज शायद 50 लाख का जो आंकड़ा है वो पार हो जाए। बड़ा ही जबरदस्त योगदान, लगभग 50 लाख रुपए, और केवल 4 वीकेंड्स। और कल से अयाज भाई जो सेमीफाइनल मुकाबले आरंभ हुए, पॉजिटिव होम्योपैथी ने भी अब हर छक्के के लिए 10,000 रुपए माफ कीजिए डोनेट करने का इरादा बनाया है। वो भी एक बहुत बढ़िया पहल है, और ये उम्मीद करते हैं और भी ऐसे लोग आगे आए और भी डोनेशंस आए, क्योंकि अब जो कार्य है वो बहुत नेक है। जो 100 हार्ट्स इनिशिएटिव है, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जो बचपन से पीड़ित हैं हृदय की बीमारी से, उनके इलाज के लिए पैसे खर्च होते हैं। ये बढ़िया शॉट क्लियर किया, इनसाइड आउट गए। बहुत अच्छी फील्डिंग, वहां पर लॉन्ग ऑफ से लंबी दौड़ लगाई, लगभग 15-20 यार्ड्स अपने बाएं तरफ भागते हुए फील्ड किया। और इसकी मैं चर्चा कर रहा था, पॉजिटिव होम्योपैथी जिसने इरादा बनाया है, मन बनाया है कि हृदय फाउंडेशन को डोनेट करेंगे हर छक्के के लिए 10,000 रुपए। कल हालांकि कल के मुकाबले उम्मीद बहुत थी विकेट को देखते हो कि बड़े बड़े शॉट लगेंगे, पर कल इतने लंबे छक्के लगे नहीं। और आज भी अगर आप देखिए इस इनिंग्स में अभी तक एक छक्का नहीं लगा, पर इसके लिए
संघर्ष कर रही है दोनों टीमें और अगली इनिंग के बाद पता चल जाएगी कि अब किसको मिलती है विजेता ट्रॉफी। बहुत ही आकर्षक ट्रॉफी, ये बड़ा शॉट और आगे गिरती हुई गेंद, टाइमिंग सही बैठा नहीं। ग्राउंड क्लियर करने की कोशिश, लेकिन पावर नहीं था स्ट्रोक में। हालांकि थोड़ी सी ऊंचाई मिली लेकिन पावर नहीं। लॉन्ग ऑफ पे आसानी से फील्ड किया, केवल 1 रन। यहाँ गियर बदल जाते हैं और प्रयास पूरा कर रहे हैं, कई बार टाइमिंग से ही बैट नहीं रहा। पिछली बार बैट की जड़ की तरफ देख रहे थे पृथ्वी। 18 ओवर की समाप्ति, 116 पे 4 चेन्नई राइनोज। We have Sri Harsha, daughter of Ravi Kumar. Harsha is 5 years old and she is at the police control room at gate number 2. A repeat message going out for Ravi Kumar, father of Sri Harsha, 5 years old. She is waiting at the police control room at gate number 2. तो ये है ट्रॉफी जो आज के जीतने वाले को मिलेगी। चेन्नई राइनोज और तेलुगु वॉरियर्स के बीच ये फाइनल सीसीएल का। और काफी ट्रॉफीज पड़ी है वहां पर उस टेबल पे मेज पर। क्योंकि आज है फिनाले इस टूर्नामेंट का, तो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, विनर ऑफ द टूर्नामेंट, सब प्राइजेस जो है वहां पर पड़े हुए हैं। काफी कुछ खेलने के लिए। एक तो गर्व की बात है, एक तो प्राइज मनी है, दूसरी गर्व की बात है। आज जो टेम्परेचर यहाँ पे है हैदराबाद में, जहाँ पे मुकाबला खेला जा रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो बढ़िया कंडीशंस हैं। विकेट भी बहुत बढ़िया है। क्यूरेटर की कल भी आप तारीफ कर रहे थे, बिलियर्ड्स टेबल की तरह ये आउटफील्ड है, बहुत ही बढ़िया तरीके से घास कटी हुई है, विकेट में उछाल है। जब भी आप स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद सही तरीके से आती है बल्ले पे, और खासकर स्क्वायर द विकेट आप काफी शॉट्स लगा सकते हैं। और एक अच्छी कवरिंग है घास की भी विकेट के ऊपर, सतह के ऊपर। तो ऑलराउंड बहुत ही बढ़िया माहौल, और टेम्परेचर अगर इस प्रकार का हो तो और मजा आता है खिलाड़ियों को भी। पुश किया मिसफील्ड वहां पर कवर में, तो 1 रन और मिलेगा, लेकिन फील्ड को इस तरह से बीट नहीं कर पाता। एक और ओवरथ्रो भी मिल गया, तो ये यहाँ पर कुछ हल्की फील्डिंग का डेमोन्स्ट्रेशन। या थोड़े बोनस रन जरूर आ रहे हैं। पहले अगर आप देखें, आप थोड़ी सी हल्की सी मिसफील्ड, और उसके बाद बहुत ही आसानी के साथ वो दूसरा रन भी पूरा किया। उसके बाद ओवरथ्रो, 1 रन और मिलता हुआ, तो 3 रन आए थे पिछली गेंद पे, पर बड़े शॉट्स नहीं आ रहे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पर अयाज भाई, आज बहुत दिलचस्प रहेगा, क्या आज नया कोई टाइटल होल्डर मिलेगा सीसीएल में? क्योंकि अगर आप चेन्नई राइनोज को देखें, जो पहले 2 संस्करण हुए थे, दोनों में ये विजेता थे, और उसके बाद कर्नाटका बुलडोजर जो तीसरा संस्करण था, उसमें कर्नाटका बुलडोजर जीती, और डिफेंडिंग चैंपियंस भी थी कर्नाटका बुलडोजर्स। पर तेलुगु वॉरियर्स की टीम के पास एक मौका है यहाँ पे चैंपियनशिप जीतने का। ये उनका घर का मैदान है, यहाँ पे बारी किनारा, यहाँ पे रन मिलेंगे। कोशिश की कैच पकड़ने की, कैच तो नहीं पकड़ा, लेकिन वहां पर बॉल को उसकी गति को कंट्रोल करने में कामयाब रहे, तो 1 ही रन। नंद किशोर है गेंदबाज, बहुत ही करीब से कट करने की कोशिश और बीट किया विकेट कीपर को, ग्लव्स पे लगती हुई थर्ड मैन की तरफ। काफी करीबी था, और वही जानते हैं गेंदबाज नंद किशोर भी। एक बार फिर ऑफ साइड पे खेलने का प्रयास, पर सचिन जोशी रास्ते में, रन देंगे नहीं आसानी से। 19 ओवर की समाप्ति, 124 पे 4।
इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चेन्नई राइनोज 124 4 विकेट नुकसान पे, पृथ्वी 25 पे, जीवा भी 21 पे। हालांकि अच्छी साझेदारी है, शायद जो रन गति में इजाफा करना चाहते हैं वो अभी तक प्रदान नहीं कर पाए हैं। अखिल आखिरी ओवर डालने के लिए तैयार है। अब 45 रनों की ये साझेदारी हो चुकी है 33 गेंदों में, और काफी खुश होंगे अब तेलुगु वॉरियर्स के समर्थक। और लाल झंडों की जो लहर सी नजर आ रही है अयाज भाई, अब बहुत ही बढ़िया दृश्य है ये। यहाँ बहुत जबरदस्त होम सपोर्ट है तेलुगु वॉरियर्स के लिए। एक बम्पर ओवर की खोज चेन्नई राइनोज को, और यहाँ पर कोशिश रहेगी, अखिल है गेंदबाज, कोशिश रहेगी कि 4-5-6 रन से ज्यादा ना दें। मैच बिल्कुल उनके कंट्रोल में है। बहुत संतुष्ट होंगे अखिल अगर स्कोर 135 तक भी रहता है। यहां से हालांकि 11 रन बनाने होंगे, पर 135 तक भी अगर सीमित करते हैं तो काफी संतुष्ट होंगे और खुश होंगे। यहाँ पे वाइड थोड़ा सा दिशा में भटकते हुए, गति बहुत बढ़िया अखिल के पास। कीपिंग में भी कमाल किया था शुरू में, अब गेंदबाजी करने के लिए मुझे बहुत हैरानी है कि मात्र ये दूसरा ही ओवर डाल रहे हैं, अंतिम ओवर है इस इनिंग्स का। कोई रणनीति होगी पता नहीं, क्योंकि विकेट कीपर भी अच्छे हैं। युवा एक्टर है, युवा खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अब तक का उनका। ये बढ़िया शॉट सीधे बल्ले से खेला, पर यहाँ पे सीधा पाया फील्डर को। ये कहां से आ गए, कमाल का कैच। मिड ऑन क्षेत्र में अखिल को विकेट मिलती हुई, ये उनकी पहली सफलता और मुश्किलें बढ़ती हुई चेन्नई राइनोज के लिए। और चेन्नई राइनोज के सपोर्टर्स के चेहरे पे साफ जाहिर था कि किस तरह से निराश हुए। ये जिस तरह से आउट हुए, अखिल ने ये विकेट प्राप्त की। मिड ऑन के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन सीधा, ज्यादा मूव भी नहीं करना पड़ा, हिलना भी नहीं पड़ा अपनी जगह से, और बहुत ही संतुष्ट वहां पर डग आउट। जीवा आउट हुए 21 रन बना के 126 पे 5। चार गेंदें शेष अब इस इनिंग्स में। बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल भी आसानी से रन नहीं दे रहे अखिल। लगातार अपनी लेंथ में तब्दीली कर रहे हैं, लाइन में तब्दीली कर रहे हैं, काफी कंजूस साबित होते हुए अभी तक बतौर एक गेंदबाज। और उनके जो फादर हैं नागर अर्जुन, वो भी मुकाबला देखने के लिए आए और काफी खुश मुस्कान नजर आ रही है उनके चेहरे पे। और क्यों ना हो, बहुत अच्छी टाइमली विकेट निकाली अखिल ने। कैप्टन भी है तेलुगु वॉरियर्स के। 3 गेंद बाकी हैं इस पारी के अब, और 126 है स्कोर। क्या कर सकते हैं अब चेन्नई राइनोज यहां से। ये स्लैश किया है और इस बार 4 रन मिलेंगे। बीट किया थर्ड मैन फील्डर को, अच्छी कोशिश, लेकिन बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, पूरा फायदा उठाया। छोटी गेंद, ये मच नीडेड एक बाउंड्री थी और अंत में आती हुई चेन्नई राइनोज के लिए थोड़ा रूम दिया था अखिल ने। पटकी हुई गेंद स्लैश किया, और जैसे कहते हैं व्हेन यू स्लैश स्लैश हार्ड, और गेंद चकमा देती हुई फील्डर को थर्ड मैन क्षेत्र में 4 रन मिलते हुए 12वां चौका इस पारी का। छक्का अभी तक एक भी नहीं लगा। इस बार फिर बल्ला घुमाया, स्विंग बढ़िया थी, बैट स्पीड बढ़िया थी, पर कोई भी संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। यहाँ पूरी कोशिश यहाँ पर बिल्कुल नजरें हटा दी गेंद से। स्विंग किया, वाइल्ड स्विंग, आखिरी गेंद। चेन्नई राइनोज अब खैर ज्यादा से ज्यादा अजय 6 रन बन सकते हैं, और मैं कहूंगा कि टोटल काफी नहीं है। बाहर निकलकर कोशिश फिर से,
फील्ड में सामने खेलने की, लेकिन इनसाइड एज लेते हुए गेंद गई डीप स्क्वायर लेग पर। 2 रन मिलेंगे केवल। तो इस तरह से 20 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई राइनोज का स्कोर 132 पर 5। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे आप कह रहे थे और हम चर्चा कर रहे थे आज भाई कि बहुत ही बढ़िया रिस्ट्रिक्ट किया है यहाँ पे तेलुगु वॉरियर्स ने। बहुत खुश हो गया वो खेमा, क्योंकि अब टॉस जीत के सब कुछ उनके पक्ष में गया है। गेंदबाजी अच्छी की है, विकेट लिए, दबाव डाला, विक्रांत भी आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। और मुझे लगता है जितने भी यहाँ पे समर्थक आए हुए हैं तेलुगु वॉरियर्स के, बहुत खुश होंगे। वेंकटेश भी मुस्कुराते हुए, पर अब अभी भी लक्ष्य उनके सामने है, चेज करना होगा। पर आज गेंदबाजी में वो पैनापन नजर आया, एक अनुशासित सा गेंदबाजी की है। एक बार फिर अगर आप देखें तेलुगु वॉरियर्स की टीम हडल में बातचीत कर रहे हैं और जानते हैं ये जो 133 रन अगर ये बना लेंगे जब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो पहली बार खिताब जीतेगी तेलुगु वॉरियर्स की टीम। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अखिल आखिरी ओवर काफी बढ़िया रहा, उनके द्वारा एक विकेट भी मिली। पर अगर बात करें चेन्नई राइनोज की तो बल्लेबाजी आज इतनी बढ़िया रही नहीं जितनी हम उम्मीद कर रहे थे। विक्रांत 23 रन बना के आउट हुए, विष्णु को भी स्टार्ट मिला, 21 पे आउट हुए, शांतु भी 21, पृथ्वी 31 पे, नवाद और जीवा 21। तो कई बैट्समैनों को स्टार्ट मिला। हालांकि रमना शुरू में 0 पे आउट हो गए, पर कुल मिला के कोई भी बैट्समैन जिसको स्टार्ट मिला उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया एक बड़े स्कोर में। गेंदबाजी में